made by our forefathers. On this historic occasion, let's remember that freedom is a precious gift that comes with responsibilities. We must uphold to the values of unity, diversity, and progress that our nation stands for. Now I invite our Principal Sir and Manager Sir to hoist the flag, followed by national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरमासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की Nation from the ramparts of the historic Red Fort to celebrate modern India's birth. The Rail Bhavan, Krishi Bhavan and all the administrative buildings and monuments are illuminated in tricolor. 1800 special guests from different vocations are invited at the Red Fort, which includes a name of few, 50 participants from Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and the construction workers of the Central Vista project, the new parliamentary building, people involved in making of Amrit Sarovar and Har Ghar Jal Yojana, primary school teachers, nurses and fishermen. Indian Independence Day has been declared as the National Day of Celebration of the world's two largest democracies in USA. The resolution is led by Indian American Congressman Shri Thanedar in US House of Representatives. Today, a delegations of 8 members are here in India to celebrate the Independence Day. This shows bipartisanship in an increasingly divided America. Oldest democracy is fostering the largest democracy, India. India's diaspora has left a mark in every field, maybe business to politics, and we stand up proud as Indian citizens. Now I would like to invite Ayushi Tripathi of BA 3rd semester to मासूमों की बेरहमी से हत्या हो न दंगा हो, न मासूमों की बेरहमी से हत्या हो न दंगा हो। चलो मिलकर बनाते हैं हम अपने स्वप्न का भारत, चलो मिलकर बनाते हैं हम अपने स्वप्न का भारत। गगन में सबसे ऊंचा अपने भारत का तिरंगा हो। तिरंगे को एक और मुक्तक समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जो सच्चे देश सेवक वो है जीवित इस तिरंगे पर,
जो सच्चे देश सेवक वो है जीवित इस तिरंगे पर। करो तुम जिंदगानी अपनी सीमित इस तिरंगे पर। करो तुम जिंदगानी अपनी सीमित इस तिरंगे पर। गरजने वाले सारे गीतड़ों से जाके ये कह दो, गरजने वाले सारे गीतड़ों से जाके ये कह दो, लहू का कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिखा जाता है। Respected director sir, principal sir, teachers and my worthy friends. First of all, I'm very grateful to Archana ma'am that I have been given this opportunity to be here on this auspicious occasion of 77th Independence Day. Okay, so let's move in the corridors of history and talk about Indus Valley civilization. Kushanas, Guptas, Indo-Greeks, Persians coming in India. Then we saw Mughals also, who were the people who migrated from Persia, Central Asia and Afghanistan and settled in India. But the question is, why are we discussing all this? Because one need to understand the difference between the rule prevailed by British people and the rule which were prevailed by the dynasties present in India. These dynasties, other than Britishers, they came here, they settled down here, and they assimilated in the cultural ethos of India and made India an enriched nation. परंतु जब हम ब्रिटिश शासकों की बात करते हैं तो उन्होंने ना ही केवल राजनीतिक व आर्थिक तौर पर भारतीयों का शोषण किया, बल्कि हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी ढलते सूरज की छाप छोड़ी है जो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। British came here with a self-proclaimed image of superiority. The white man's burden manifested into the worst form of discrimination, racism, and divide and rule. Britishers always considered India as a market and as a colony. और मुझे लगता है शायद यही कारण है कि हम केवल ब्रिटिशर्स को ही एलियन रूल कहते हैं। Our forefathers have laid down their lives to free India and to make India a great nation. लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या एक राष्ट्र महान केवल अपनी राजनीतिक व्यवस्था व आर्थिक व सैन्य बल से होता है? नहीं, एक राष्ट्र महान होता है अपने कर्तव्यों से, अपने मूल्यों से, अपनी सभ्यता से और अपने माफ कर देने वाले हृदय से। And friends, that is the reason that we hold so much tolerance and so much compassion that we have forgave Britishers and we still are a part of Commonwealth nations. And this year, India is celebrating G20 presidency. So the theme of Vasudhaiv Kutumbakam is echoing in the global stage. हमें आजादी मिले हुए भले ही 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असल मायने में भारत तब आजाद होगा जब हम आजाद होंगे गरीबी से, टीवी से, सांप्रदायिकता से और आधुनिकता की इस खोखली और बेढंगी दौड़ से। So India have provided us immense and numerous opportunities and reasons to be proud on. So I feel that it is our utmost duty now to provide at least one. और आखिर में मैं विराम देना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। माननीय प्रबंधक जी, जिन्होंने अपने अनुभवों से संस्था को सींचा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। इस समय उपस्थित सारे विद्यार्थी, मेरे सहयोगी, सुन के बहुत अच्छा लगा वैष्णवी की स्पीच, सुन के बहुत अच्छा लगा आयुषी की, क्योंकि देखिए आज़ादी बात इतिहासों की नहीं करेंगे, वो आप जानते हैं, बात इस बात की है कि इस 75 साल में हमने बहुत सारी ऊंचाइयां छुई हैं। जैसे लोकतंत्र भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान के साथ आ गया, बट लोकतंत्र का प्रसार धीरे धीरे हुआ।
पहले केंद्र में सरकारें बनती थी, राज्य में सरकारें बनती थी, फिर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हुआ, पंचायती राज आ गया, नगर निगम आ गया, फिर उसका विकेंद्रीकरण ऑफिसों में शुरू हो गया, परिवार में शुरू हो गया, निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाने लगे। सेम अगर आज का युवा ये सोचता है, देखिए जब तक विचार की गहराइयां नहीं होती हैं तो फिर आगे आपकी सोच कर्म बन नहीं सकता, एक्शन बन नहीं सकते। अगर ऐसी ने ये पंक्तियां लिखी है तो इसका मतलब विचारों के गोते लगाए उन्होंने। सेम यही अपील है, क्योंकि सबकी अलग अलग ड्यूटी है, सबका अलग अलग स्ट्रेंथ है। हमारी ड्यूटी है बीइंग इंस्टीट्यूशन, हम डील कर रहे हैं ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में, हम बहुत सारे शिक्षकों को निकाल रहे हैं, तो उनके अंदर जो सीट्स होना चाहिए उसकी बात मैं करता हूँ। सीट्स होनी चाहिए। आपका सारा डेवलपमेंट बहुत फास्ट चल रहा, हर लेवल की ऊंचाइयों पर है, स्पेस हो, न्यूक्लियर हो, इकोनॉमिक पावर हो, सब कुछ आप टेक्निकली जाने, आपके पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप हर जगह देख रहे हैं, आप थर्ड पावर है, सेकंड पावर है, ठीक, आपके पास नॉलेज के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बस सबसे बड़ा वो नॉलेज जो है वो कल्चरल पोल्यूशन लेके आया है। हमारी आजादी को हमारा सांस्कृतिक प्रदूषण छीन रहा है। हमको उस सांस्कृतिक प्रदूषण से आजाद होना है। जो बात अपनी पंक्तियों में आयुषी ने भी कहा, बेसुदी ने भी कहा, यह बात हमारे सारे शिक्षकों में, जो भावी शिक्षक हैं, जो छात्राध्यापक हैं, वैसे तो शिक्षा ये डील करता है कि लाइफ टाइम आपको सीखना है। शिक्षा सिखाता ये है कि आपको जीने की स्किल क्या है, टाइम टू टाइम कोई पोल्यूशन या कोई चीज आते हैं तो उसको कैसे आप प्रिवेंट करेंगे। आज जो सबसे बड़ा पोल्यूशन है वो लगातार आपके संवेदना का जाना है। परिवार में, एक ही परिवार में जो यूनिटी है वो खत्म होती जा रही। बेटा बाप को नहीं ओबलाइज कर पा रहा, ठीक, वाइफ भी कहीं ना कहीं नहीं ओबलाइज कर पा रही। ये धीरे धीरे सोसाइटी में होता चला जा रहा, हर इंस्टीट्यूशन में होता चला जा रहा। आप लेते समय आपको चॉइस नहीं है। हाई स्कूल में सब लोगों ने पढ़ा, एक नोबेल है परीक्षा गुरु, और वो इंडिया की पहली हिंदी नोबेल है जिसको श्रीनिवास दास ने लिखा है। उसकी स्टोरी यही बताती है। आप तो बहुत सारे आपने नोबेल्स पढ़ी, जैसे प्रेमचंद की सारी नोबेल्स इंडियन पोल्यूशन को डील करती है, जो ब्रिटिश पीरियड में लिखी गई है। तो ये डील करता है कि कैसे एक ग्रोइंग मिडिल क्लास की फैमिली अपने बच्चों को एडवांस बनाने में वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करता चला जाता है, और एट रिजल्ट अपने सारे संस्कार खो देता है। जो अचीवमेंट चाहिए आपकी पढ़ाई से, आपकी शिक्षा से, कोई देश डील होता है युवाओं की अच्छी एजुकेशन से। आज आपको फाइनेंशियल पावर एमपीएस दे सकते हैं, बट आपकी स्ट्रेंथ टिकी रहेगी आपकी चरित्र से, वो आपका संस्कार दे सकता है। दुनिया की पहली संस्कृति, उन्होंने बताया इंडस पहली सिविलाइजेशन है, उससे पहले चले जाइए तो रामायण है। वहां देखिए अनुभव की कितनी कीमत रखी गई है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है, राम कथा प्रचलित है, वो हमारे संस्कारों को जीवित रखने के लिए है कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या आइडियल रोल होना चाहिए, पिता का, पुत्र का, बहन का, पत्नी का, तो वो हमारे पास एक आइडियल है। कोशिश है हम उसको बांध के रखें। और सबसे बड़ी बात देखिए, वहां जामवंत जैसे अनुभवी व्यक्ति का भी रोल है। यहाँ एक्सपीरियंस को प्रेजेंस देना चाहिए। जैसे नई जनरेशन उस एक्सपीरियंस की जगह सब्स्टिट्यूट कर रही है यूट्यूब को, सोशल मीडिया को, उनसे लेती है और उनको तुरंत आउटसाइड कर देती है। बट वो जो एग्जाम्पल, वो जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो आपको टोकते हैं, वो यही उनका अनुभव है। कहीं न कहीं वो आपके अंदर संस्कारों को टूटता हुआ देखते हैं कि इसकी ग्रोथ तो हो रही है एजुकेशनली, जान तो जा रहा अंग्रेजी के शब्दों को, बोल भी ले रहा है, लेकिन उसके अंदर वो बात नहीं है कि पिता के लिए जो फीलिंग होनी चाहिए। अगर माँ को दर्द है, माँ को बुखार है, तो उसको चाय देना जरूरी है, ना कि कोचिंग जाना जरूरी है। तो मैं आज बीइंग अ प्रिंसिपल, और ये बीज बिहारी ग्रुप तो इस बात को तरजीह दे रहा। मैनेजर सर को सब लोग उसी रूप में देखते हैं, उनको हर संस्था में उनके अनुभवों से संचालित होते हैं। हम लोग पर्सनली गाइडेड होते हैं कि कहाँ कैसे टूट रहा है, क्या करना चाहिए। तो आज की डेट में बस यही कि स्वतंत्रता तो हर जगह से है, हम अपने आप को आयात से स्वतंत्र करें।
जो बहुत सारी चीजें जहां आपका स्कोप है, ट्रिलियन डॉलर में इकोनॉमी में इंडिया में आपका बहुत सारा स्कोप है, आप बहुत सारी चीजों में बचा सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, उससे आप फ्री कर सकते हैं, कल्चरल पोल्यूशन से आप फ्री कर सकते हैं। भी आप बताइए, सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को अपनी लाइफ में पढ़ाएंगे, मगर अगर वो वैल्यूज, वो कैलिबर आपके पास है तो कंट्री को टिका के रख सकते हैं। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ उस अनुभव को सुनने के लिए जो प्रबंधक जी के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है, और जो फिर से हमें सिखाएगा कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, डेवलप होते चले जा रहे हैं 75 सालों में, लेकिन किन चीजों में सुधार है जो डेवलपमेंट हमारा टॉप पे चला जाए, हम फिर से विश्वगुरु हो जाए जो चाणक्य पीरियड में थे, जो गुप्ता पीरियड में थे। ठीक, थैंक यू। Always, thank you so much, sir. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर सभी को धन्यवाद। एवं ये कहने के लिए कि प्रिंसिपल सर ने जो बातें संस्था के संबंध में कही, उसके संबंध में थोड़ा सा रखूंगा, क्योंकि इंटर कॉलेज और विद्या मंदिर में प्रोग्राम चल रहा है, वहां भी जाना है। और आज यहाँ पर कार्यक्रम देखकर लगा कि दो बच्चियों ने उनका उत्साह और उनका टैलेंट देखकर लगा कि बच्चियां कहां से कहां निकलती जा रही हैं, उनकी सोच क्या है। आज के समय में आपने सुबह बहुत बच्चे हैं, ज्यादातर यहाँ पर छोटे बच्चे नहीं हैं, सब आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इसमें से देखें कि सभी बच्चों के पास मोबाइल होगा। कि अभी सुबह 7:30 बजे जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने झंडारोहण किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम विकसित देश हो जाएंगे। हम लोग केवल सुन लेंगे कि विकसित देश होता क्या है, बस इतना सुन लेंगे कि विकसित देश होता क्या है। विकसित देश के मतलब हो जाएगा कि आप अभी जैसे इसमें कुछ बच्चे गांव में हो, जो गांव के लोग वो देखते होंगे कि गरीबी है, बच्चे गांव में देखते होंगे कि जो गरीब लोगों के बच्चे हैं किस ढंग से रहते हैं, उनके पढ़ाई का साधन ढंग का नहीं है, खाने पीने का साधन ढंग का नहीं है। ये सब विकसित देश में ये सब नहीं है, ये सब गरीब देशों में है या विकासशील देशों में है। लेकिन विकसित देशों में हर आदमी संपन्न है। आप लोग कहीं कहीं अपने बड़ों से सुनते होंगे ना, या तुम लोग भी जान गए होंगे, इतने बड़े हो गए हैं कि जब विकसित देश में बाल काटने वाला भी जाता है तो भी अपने कार से जाता है, वहां पर बाल की दुकान पर गया, आपके घर बुलाए तो आपको चार्ज लिया। तो ये विकसित देश की पहचान होती है कि वहां पर हर छोटा काम है, छोटा काम में ज्यादा पैसा लगता है। आप किसी से सुन लेंगे कि जो विकसित देश है वहां पर जो स्वीपर का काम है वो ज्यादातर लोग अपने से करते हैं। अगर स्वीपर का काम वहां कराओगे ना तो अन्य कामों से ज्यादा उस स्वीपर का काम आप सुन लेगा पैसा। तो इसलिए विकसित देश की पहचान यही है, और भारत धीरे धीरे विकसित देश बनेगा। यहाँ पर अब तक विकसित देश बन जाता, लेकिन एक जनसंख्या का एक ऐसा कारण है जिसको हर सरकार छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये सामाजिक रूप से अपने आप धीरे धीरे हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि गांव में जिनके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते, धीरे धीरे 1-2 बच्चे अपने आप लोग कंट्रोल में हो गए हैं। तो धीरे धीरे जब आबादी कंट्रोल में हो जाएगी तो विकसित देश होने में बहुत जल्दी हो जाए। जो और जल्दी होने को होता है और समय लेता है, और गरीबी का कारण यही है। इसके अलावा मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा ये दोनों बच्चियों को कि इन्होंने कितना बढ़िया से, इनके बोलने में अभी ऐसा बोल रही हैं, तो जब पढ़ाएंगी कहीं या कहीं जाएंगी जो एग्जाम में होगी वो बहुत सफल होंगी, ये लग रहा है इनकी गाय। आप लोग भी बनिए, आप लोग अपनी बातों को जब यहाँ स्टेज पर कह लेंगे तो कहीं कह लेंगे। जिसे होता है अक्सर कि हम लोग क्या करते हैं, अगर डीएम से बात जानना है, वीडियो से मिलना है, हाँ, और मिलना है किसी अधिकारी से मिलना है, जो गेस्टेड अधिकारी हैं उनसे मिलना है, एडीएम
पुलिस अफसर से मिल रहा है, तो हम लोग ढूंढते हैं कि ये आदमी जाएगा हमारे साथ तो ये भैया बात कर लेगा। तो ये वाली बात करने वाले आप बनिए, बात करने वाले आप ऐसा अपने को डेवलप करिए कि आप बात कर लीजिए, आपको लोग ढूंढें। ये ना करिए कि इस विद्यालय से निकलिए और सोचिए कि आपको ढूंढना पड़े किसी को। हमको हमारा कर्तव्य है, हमारे प्रिंसिपल का कर्तव्य, हमारे टीचर का कर्तव्य है कि आपको ऐसी व्यवस्था दें कि आप बोलने लायक हो जाए, कहीं समाज में जाए तो अपनी बात रखें, अपनी बातें करें, आपको हम दबा नहीं रहे। आप जैसे देखे हैं कि आपके कॉलेज में हमने सब व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे हैं, इसी डीएलएड और बीएड सेक्शन में ही, कि आपको इलाहाबाद में जितने बीएड और कॉलेज है, बीटीसी कॉलेज, उसमें सबसे बढ़िया ऑडिटोरियम आपका बन रहा है। लाइब्रेरी भी कह दिया गया है कि ऐसी लाइब्रेरी बनाइए कि बच्चे उसमें समय जाके बिता सकें। केवल फॉर्मेलिटी के लिए, मान्यता लेने के लिए रिकग्निशन हमारा हो गया, केवल बस उतना कर देंगे। जो व्यवस्थाएं हों A1 की व्यवस्थाएं हों। जैसे अगला आज कार्यक्रम इसमें कर रहे हैं, अब अगला कार्यक्रम आप लोग सारा वही करेंगे, आपके लिए बनाया गया हो। तो विद्यालय आपके लिए सब कुछ करने के तैयार है। जैसे अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि हम टेट की तैयारी अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, तो टेट की तैयारी आपको कराई जाएगी कि टेट आप तैयार कर लें, टेट के अनुसार आप हर काम में टेट आता है। दूसरी बात है कि टेट में कोई पैसा नहीं दीजिएगा आप, ना उसके जैसे सोच कहे कि ऑनलाइन क्लासेज हो जाएगी, बाद में सर पैसा मांगने लगेंगे, बाद में हमारे क्लासेज ज्वाइन करने लगे, ये सब संभव नहीं। ऐसी कोई शिकायत हो तो हमारे पास आप लोग को यहाँ आएंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत समय नहीं लगे। घंटी मैडम ने कहा कि हम फोन करेंगे आपको जैसे हमारा कार्यक्रम समाप्त होने गया वहाँ पर स्पीच देना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा न कहके सभी को धन्यवाद। यहाँ के टीचर्स को, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, देख के लगा कि बच्चे अच्छे हैं। आप अच्छा करेंगे और आप अच्छा बनेंगे, यहाँ से जाएंगे तो हम लोग को याद करेंगे कि आपने कुछ कहा था और कुछ करके गए। सब प्रिंसिपल सर को कहेंगे, यहाँ के टीचर कहेंगे, इनको रोज लाइए, इस योग्य बना दीजिए कि जाए तो कहीं सफल हो जाए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।